وہ لمحہ جب زمین کانپ اٹھے گی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کے سامنے ایک لشکر کھڑا ہے جن کی تعداد انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا، یاجوج اور ماجوج۔ لیکن یہ جنگ کیسے ختم ہوگی جب کوئی ہتھیار غالب نہ ہو؟ اللہ کا ایک حکم ہی کافی ہے۔ چینل پر اسرار دنیا آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں تصور کیجئے وہ لمحہ جب آسمان کانپ اٹھے گا، جب زمین کا سینہ چیر کر ایسی مخلوق نکلے گی جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینے پر مجبور ہوں گے، اور پھر صبح ہوگی، ایسی صبح جو تاریخ نے پہلے نہ دیکھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید پر اسرار دنیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کے اس عظیم فتنے کی جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئیں گے، کیا تباہی مچائیں گے، اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں، کوئی من گھڑت بات نہیں، کوئی افسانہ نہیں، صرف حقیقت۔ یاجوج ماجوج قرآن میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج بنی آدم ہی کی اولاد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ وہ انسان ہے، مگر ایسے انسان جن کی تعداد، جن کی طاقت اور جن کا فساد ناقابل تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لآدم اخرج باس النار فیقول من کم فیقول من کل 1999 یعنی جنت میں جانے والوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 میں 999 ہوگی۔ صحیح بخاری۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں، اربوں، شاید کھربوں، اور یہ سب ایک ساتھ دنیا پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ ذوالقرنین کی دیوار، وہ بند جو ابھی قائم ہے۔ قرآن مجید سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جو ایک عظیم بادشاہ اور نیک حکمران تھے، مشرق، مغرب اور شمال کا سفر کرتے ہوئے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں سے پریشان تھی۔ اس قوم نے فریاد کی، یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ سورۃ الکہف 94۔ ترجمہ، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری مدد سے بہتر ہے، بس تم مجھے قوت بازو عطا کرو۔ پھر انہوں نے لوہے اور تانبے کی ایسی دیوار تعمیر کی جو پہاڑوں کے دروں کو بند کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہو جاتے ہیں کہ سوراخ نظر آنے لگتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کل آ کر مکمل کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اگلے دن دیوار پہلے کی طرح مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، مگر جب وقت مقرر آئے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ کہیں گے کل آ کر مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس دن دیوار نہیں بنے گی اور وہ نکل آئیں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يخرج یاجوج و ماجوج۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ نکلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قیامت کی عظیم نشانی۔ یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے ایک اور عظیم واقعہ رونما ہوگا جسے ہر مسلمان جانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا اور وہ ابھی بھی آسمان پر زندہ موجود ہے۔ قیامت قریب آنے پر وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے۔ ینزل عیسی ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق۔ صحیح مسلم 2937۔ ترجمہ،
ईसा इब्ने मरियम दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उनकी आमद का एक अजीम मकसद ये होगा कि वो दज्जाल का खातिमा करें, जो उनसे पहले निकल चुका होगा और पूरी दुनिया में फितना मचा चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लद यानी फ़लस्तीन में कत्ल करेंगे। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में एक मुख्तसर अमन का दौर आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में क़याम करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे और फिर वो वक्त आएगा जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। याजूज माजूज का खुरूज क़यामत की सबसे बड़ी आफत। हज़रत नावास बिन समान रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयबअसुल्लाहु याजूजा व माजूजा वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलूना फयमुर्रु अवाइलुहुम अला बुहैरती तबर्रियता फयशरबूना मा फीहा। सही मुस्लिम। तर्जुमा, अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा और वो हर ऊंचाई से दौड़ते आएंगे। उनके अगले दस्ते बहीराए तबरिया यानी समंदर गलील से गुजरेंगे और उसे पी जाएंगे। जरा सोचिए, बहीराए तबरिया यानी समंदर गलील जो एक बड़ी झील है, उसका पानी याजूज माजूज की पहली सफ पी जाएगी। जब पिछले आने वाले गुजरेंगे तो वो कहेंगे, यहां कभी पानी भी था। फिर वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि कोई कुव्वत उन्हें नहीं रोक सकती। वो सब कुछ रौंदते, सब कुछ चरते और सब कुछ बर्बाद करते आगे बढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद मुसलमान उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई हथियार, कोई फौज, कोई हिकमत अमली काम नहीं आएगी। ये इतनी अजीम तादाद होगी जो इंसानी ताकत से बाहर है। तूरे सीना पर पनाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। वो अपने साथियों को लेकर एक मजबूत जगह तूरे सीना के पहाड़ पर पनाह लेंगे। ये वो वक्त होगा जब एक नबी भी, अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर भी सिर्फ दुआ ही कर सकते होंगे। और यही असल हकीकत है कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़यरग़बु नबियुल्लाहि ईसा व अस्हाबुहु इलल्लाहि फ़युरसिलुल्लाहु अलैहिमुन नग़फ़ा फ़ी रिक़ाबिहिम फ़युस्बिहूना फ़रसा कमौती नफ़्सिन वाहिदिन। सही मुस्लिम। तर्जुमा, तो अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में नग़फ़ यानी एक कीड़ा भेजेगा और वो एक जान की तरह हलाक हो जाएंगे। ये है वो अजीम हकीकत जिसे बहुत से लोग गलत समझते हैं। याजूज माजूज का खातिमा किसी जंग में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार लेकर मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि सिर्फ एक दुआ और अल्लाह का हुक्म और एक छोटा सा कीड़ा खरबों की तादाद में मौजूद याजूज माजूज को एक लम्हे में मार देगा। अल्लाहु अकबर! कितनी अजीम है इस रब की कुदरत जिसने एक हकीर कीड़े को इस कदर शिकस्त खोरदा दुश्मन का हथियार बना दिया। हिलाकत के बाद जमीन पर खामोशी और फिर बारिश। जब याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे तो जमीन पर उनकी लाशें बिखरी होंगी। पूरी जमीन उनकी गंदगी और बदबू से भरी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस जमीन को पाक किया जाए। सुम्मा यरग़बु नबियुल्लाहि ईसा व अस्हाबुहु इलल्लाहि फ़युरसिलुल्लाहु तैरन का आनाक़िल बुख्ती फ़तहमिलुहुम फ़ततरहुम हैथु शा अल्लाहु। सही मुस्लिम। तर्जुमा, फिर अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी दुआ करेंगे तो अल्लाह बख्ती ऊंटनी की गर्दनों जैसे परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर जहां अल्लाह चाहे फेंक देंगे। फिर आसमान से बारिश बरसेगी, ऐसी बारिश जैसे पहले कभी नहीं बरसी होगी। जमीन धुल जाएगी, साफ हो जाएगी और फिर इतनी जरखेज हो जाएगी कि एक अनार का छिलका पूरी जमात को काफी होगा। व तुखरिजुल अर्दु बरकतहा हत्ता पजतमिगन नफरतु अलर रुम्मानती फतुशबिहुम। सही मुस्लिम। तर्जुमा, जमीन अपनी बरकत निकालेगी यहां तक कि एक जमात एक अनार पर जमा होगी और वो उन्हें सेर कर देगी। एक ऊंटनी का दूध इतना होगा कि पूरी कौम को काफी होगा। गाय का दूध कबीले को सेर कर देगा। जमीन पर अमन, खुशहाली और बरकत का दौर आएगा। याजूज माजूज के खुरूज की अलामात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात बताई हैं जिनसे अंदाजा हो सकता है कि याजूज माजूज का खुरूज करीब है। पहली अलामत, दज्जाल का ज़ुहूर। याजूज माजूज का खुरूज दज्जाल के बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। ये सब वाक़यात एक जंजीर की कड़ियों की तरह एक के बाद एक होंगे।
दूसरी अलामत दाब्बतुल अर्द, जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। ये भी इन कुबरा अलामात में से एक है। तीसरी अलामत धुआं, आसमान पर धुएं का एक बादल छा जाएगा जो मोमिनों को नज़ले की तरह और काफिरों को सख्त तकलीफ देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियां गिनवाई हैं और उनमें याजूज माजूज का खुरूज एक है। अशरु आयातिन अद्दुखानु वद्दज्जालु वद्दाब्बतु वतुलू शम्सी मिन मग़रिबिहा वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियमा वयाजूज व माजूजु। सही मुस्लिम। तर्जमा 10 निशानियां हैं, धुआं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, मगरिब से सूरज का तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल और याजूज माजूज। उलमा के सवालात और उनके जवाबात। इस मौजू पर उम्मत में कुछ अहम सवालात उठाए जाते हैं जिनका जवाब अहादीस से मिलता है। सवाल, याजूज माजूज की दीवार कहाँ है? उलमा की राय मुख्तलिफ है। बाज़ के नज़दीक ये वस्ती एशिया में है, बाज़ कफ़क़ाज़ के पहाड़ों की तरफ इशारा करते हैं। मगर अहम बात यह है कि ये दीवार गैब के पर्दे में पोशीदा है और हम याजूज माजूज और हमें उसकी जगह जानना ज़रूरी नहीं, उस पर ईमान रखना ज़रूरी है। सवाल, क्या वो जिस्मानी तौर पर गैर मामूली हैं? बाज़ ज़ईफ़ रिवायात में उनकी जिस्मानी खुसूसियात का जिक्र है, मगर वो अहादीस ज़ईफ़ हैं और काबिल एतमाद नहीं। सही अहादीस में उन्हें इंसान ही बयान किया गया है, अलबत्ता तादाद में बेपनाह। सवाल, क्या वो अभी ज़मीन के नीचे हैं? नहीं, अहादीस के मुताबिक वो दीवार के पीछे बंद हैं और रोज़ाना उसे खोदते हैं। वो इसी दुनिया में हैं, इंसानी आबादी से दूर किसी बंद इलाके में। याजूज माजूज का तकब्बुर और अल्लाह का इंतकाम। रिवायत है कि जब याजूज माजूज तमाम ज़मीन को फतह करने के बाद आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और वो तीर खून में लथपथ वापस आएंगे, तो उनका तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। वो कहेंगे, हमने अहले ज़मीन को तबाह कर दिया और अहले आसमान को भी शिकस्त दे दी। मगर ये खून अल्लाह की तरफ से उनको धोखा देने के लिए होगा, क्योंकि उनका अपना वक्त आ चुका होगा। और फिर एक छोटा सा कीड़ा नगफ उनकी गर्दनों में पहुंच जाएगा और वो पल भर में ढेर हो जाएंगे, जैसे एक आदमी एक ही लम्हे में मर जाए। ये है अल्लाह का कानून। जो तकब्बुर करे उसे जिल्लत मिलती है, जो ताकत पर भरोसा करे वो सबसे कमज़ोर चीज़ से मारा जाता है। हमारे लिए सबक, आज के मुसलमान क्या सीखें? याजूज माजूज की ये कहानी महज एक वाक़या नहीं, ये हमारे लिए एक अजीम दर्स है। नंबर 1, असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी जब बेबस हुए तो सिर्फ दुआ ही उनका हथियार था। हमें भी अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। नंबर 2, दुनिया की ताकतें आर्जी हैं। याजूज माजूज के सामने दुनिया की कोई फौज नहीं टिकेगी। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सुपर पावर्स अल्लाह के सामने कुछ नहीं। नंबर 3, ईमान की तजदीद करें। ये सब वाक़यात होने हैं, ये कुरान का वादा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। जो शख्स आज अल्लाह से जुड़ा है उसके लिए वो वक्त खौफ का नहीं बल्कि ईमान की दलील का वक्त होगा। नंबर 4, दुआ को कभी न भूलें। जब दुनिया की सारी ताकतें नाकाम होंगी, एक नबी की एक दुआ काम करेगी। दुआ की ताकत को समझें। इख्तितामिया, बिरादरान इस्लाम, याजूज माजूज का खुरूज एक यकीनी हकीकत है जिस पर ईमान रखना हर मुसलमान पर वाजिब है। ये कोई अफसाना नहीं, कोई दास्तान नहीं, ये कुरान मजीद का बयान है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन फितनों से महफूज रखे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें दुनिया व आखिरत में अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन।